Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I am telling you about the shear stress and strain. In the previous lecture, I am telling you about the effect of normal stress that is produced by the axial loads acting on the straight bar, and these stresses are called the normal stresses because they act in the directions perpendicular to the surface of the material. And now we are going to consider another kind of stress that is called a shear stress, and it is basically acts tangential to the surface of the material. So in this illustration, the action of the shear stress is considered the bolt connection is shown. So this connection consists of a flat bar that is represented by a symbol A, and the sleeve is represented by C, the bolt is represented by B, and the load, or you can say tensile load, is represented by P. So the bar and sleeve will press against the bolt in bearing, and contact stresses called the bearing stresses it will be developed. So in this figure you can see कि जब आपका बोल्ट जो है और जो स्लीव है आप इस लोड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी तो उसके नतीजे में आपकी बेरिंग स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस होगी. सो टू शो द मोर क्लियरली अबाउट दिस फिगर यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे मेरे पास स्लीव है और ये मेरे पास बोल्ट है और ये मेरे पास फ्लैट बार है. सो इसकी अगर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगी. यहाँ पे आपको 1, 3 एंड 2 के साथ जो स्ट्रेसेस इस बोल्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो नज़र आ रही हैं. अब जो 1 और 3 है ये बेसिकली जो आपकी स्ट्रेसेस लेबल की हुई हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर बेसिकली ऐड कर रही हैं वो आपके स्लीव्स की मदद से, मतलब स्लीव्स की वजह से अप्लाई हो रही हैं. मतलब ये जो बोल्ट है वो इसको इस स्लीव के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ है. जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपकी जो ये स्लीव है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगी मूव करने से बाय यूजिंग द बोल्ट. और जो यहाँ पे लेबल 2 की हुई है फोर्स जो आपकी राइट हैंड साइड पे अपीयर हो रही है ये आपकी स्ट्रेस की वजह से आ रही है जो आप यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे, डैट इज़ पी. जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में यहाँ से फोर्स जो है आपकी ऐड करेगी और यहाँ पे हमारे पास फिर 1, 2 एंड 3 ये लेबल्स आ गए हमारे पास स्ट्रेसेस के. So as the actual distribution of the bearing stress is difficult to determine, so it is, or we are assuming that the stress is uniformly distributed over here. Alright, so based upon this assumption, the uniform distribution, we can calculate the average stress, or you can say the sigma B, it is equal to the force FB divided by the area AB. So the force FB is the bearing force and area AB is the bearing area. And we can say the average bearing stress, or you can say sigma B is equal to FB over AB. So the bearing area is basically defined as the projected area of the curve bearing surface. तो जो आपकी कर्व बेरिंग सरफेस है उसके साथ हम उसको डोनेट करते हैं. सो जो हमारे पास ये लेवल ए के ऊपर फोर्स आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है इसका जो एरिया है ये आपके पास कैसे आएगा, ये बेसिकली थिकनेस ऑफ द स्लीव एंड विड्थ दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बोल्ट है. सो इसी तरीके से आपकी यहाँ 3 पे भी फोर्स लग रही है तो इट मीन्स कि जो आपकी फोर्स है इन दिस पॉइंट 1 एंड 3 वो हाफ होगी. सो 1 एंड 3 के ऊपर जो है आपकी फोर्स जो लोड है वो डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी फोर्स जो है वो 2 साइड, मतलब 2 वे जो है वो ऐड कर रही है 8 साइड पे. सिमिलरली जो आपके पास लेवल 3 है वहाँ पे आपकी फोर्स सेम होगी, वहाँ पे पी लोड ही कंसीडर किया जाएगा इन दिस सिचुएशन. बट ये 1 एंड 3 के लिए आपकी जो फोर्स है वो डबल हो जाएगी. So now you can consider the bearing stress between the flat bar and the bolt that is labeled as the stress 2. So for this stress the bearing area, or you can say AB, is the resultant with the height equal to the thickness of the flat bar
and width that is equal to the bolt diameter. So the corresponding bearing force FB is equal to the लोड P. तो इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट के ऊपर जो आपकी फोर्स एक्ट कर रही है FB, आपकी जो बेरिंग फोर्स है वो इक्वल हो रही आपके P फोर्स के, जबकि 1 और 3 के लिए आपकी जो फोर्स है FB वो हाफ हो रही P के. सो यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर यू कैन सी M N P एंड Q, ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपकी जो फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो शेयर फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं. इसको अगर आप इस पर्टिकुलर फोर्स को मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम यहाँ पे डी फिगर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे देखें आपकी दो शेयर की जो फोर्सेस हैं वी जो स्ट्रेट टेंजेंशियल एक्ट कर रही हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं. इस फिगर के ऊपर यहाँ पे ये नज़र आ रही है. ये एम एन पी और क्यू जो हमने यहाँ से इस ब्लॉक को लिया था उसको यहाँ पे शो किया हुआ है. और ये मेरे पास जो लोड पी है वो एक्ट कर रहा है. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो शेयर की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इसीलिए हम इसको डबल शेयर कहेंगे. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो शेयर की फोर्सेस हैं तो हम इसको डबल शेयर के नाम साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और जो ट्रांसमिट करेगी जो लोड हो रहा आपका वो P/2 हो रहा इन दिस सिचुएशन. सिमिलरली अगर आपके पास सिंगल शेयर स्ट्रेस होगी तो फिर डेफिनेटली आप उसको सिंगल शेयर स्ट्रेस जो है वो कहेंगे, जैसा कि आपको इस इलस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो आपकी फोर्स हैं दोनों सिंगल डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास डबल शेयर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे फिर जो हमारे पास लोड हो रहा है वो उसका हाफ हो जाएगा. अब हम एक और केस जो है वहाँ पे यहाँ पे देते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक बोल्टेड कनेक्शन है और उसको सिंगल शेयर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. तो जैसा मैंने पहले ऊपर आपको डबल शेयर स्ट्रेस के बारे में बताया है, इसी तरीके से अब यहाँ पे हम सिंगल शेयर स्ट्रेस के बारे में यहाँ देते हैं जिसके अंदर एक हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन है बिटवीन सिंगल शेयर. तो यहाँ पे मेरे पास एक बीम है और इसके साथ यहाँ पे एक बोल्ट के साथ मैंने इस कनेक्शन को लिंक किया हुआ है. ये मेरे पास 3D के अंदर व्यू है और यहाँ पे मैंने 2D के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है. जो पे ये मेरे पास फोर्स जो है यहाँ पे P एक्ट कर रही है. इसकी जब मैं इस पॉइंट को ड्रा करता हूँ जूम करके तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरे पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ये मेरे पास बेरिंग स्ट्रेस की फोर्सेस हैं. तो एक मेरे पास जो इस P के थ्रू आपकी फोर्स आ रही है वो यहाँ पे आ रही है और जो ये बोल्ट का कनेक्शन आपको इस पॉइंट को स्टॉप करके रखेगा वो मेरे पास यहाँ पे. और ये मेरे पास शेयर स्ट्रेस की फोर्स है जो कि इसकी टेंजेंशियल एक्ट कर रही है M और N के. ठीक है, तो इसके नतीजे में जो कंटिन्यूसली लोड बेसिकली आपका अप्लाई हो रहा उस नतीजे से जो आपका ये बोल्ट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से आपकी जो है शेयर स्ट्रेस की वजह से इसमें फेलियर जो है वो अटर हो रहा है. ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो बोल्ट का कुछ इस तरह से हो जाएगा. तो मेरे पास जो एवरेज शेयर स्ट्रेस है दैट इज स्टार एवरेज इज इक्वल टू द V/A. So V is basically equal to the shear force and A is the cross-sectional area of the bolt. So if a double shear stress is acting upon the bolt as seen in the above example, then the shear force V is equal to the P/2 as discussed earlier. So the shear stress like normal stress represent intensity of force or force per unit area. Thus the unit of shear stress are the same as those for normal stress, namely partials or multiples thereof in SI units. तो ये जो मेरे पास टर्म्स हैं ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस की सूरत में नज़र आ रही. तो शेयर जो हमारे पास स्ट्रेस थी, शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है. तो ये जो शेयर स्ट्रेस जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस बेसिकली एक्ट करती है ये अराइज होती है बोल्ट, पिन, रिवर्स और वेल्ड एंड ग्लू जॉइंट्स के अंदर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेसेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन. So to obtain the more complete picture of the action of shear stress, let us consider a small element of material in the form of rectangular parallelepiped having the sides of length A, B and C in the X, Y and Z direction. So the front and rear face of this element are free of stresses. So the front and the rear face of this
element are free of the stresses. So now let's assume the shear stress, you can say a tau 1 is distributed uniformly over the right hand face, which has the area BC. So in order for the element to be in equilibrium in the y direction, the total shear force tau 1 BC acting on the right hand face must be balanced by an equal but opposite direction shear force on the left hand face. So since the area of these two faces are equal, if it follow, the shear stresses on the two faces must be equal. According to this situation, we can say that tau 1 is equal to tau 2, as the same area tau 2 is applied over here. So the tau 1 जो आपकी shear stress की force आपकी right hand face पे लग रही है, इसको equilibrium में रखने के लिए इसकी left hand side के साथ उसको बैलेंस आउट कर देगी. सिमिलरली जो आपकी टॉप सरफेस के ऊपर tau 2 की shear stress की force अप्लाई हो रही है, उसको बैलेंस आउट और इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसकी बॉटम जो सरफेस है उसके साथ उसको बैलेंस आउट कर देगी. सो तो आपके पास tau 1 है वो tau 2 के बराबर हो रहा है. So therefore the magnitude of the four shear stresses acting on the element are equal. तो जिस तरीके से आपकी यहाँ पे दो shear stress की forces एक्ट कर रही हैं, that is tau 1 and tau 2, इनको बैलेंस आउट करने के लिए इक्वल डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन के साथ इनके ऑपोजिट फेस के ऊपर भी दो shear stresses की forces अप्लाई करेंगी, ताकि जो आपकी shear stress है वो इक्विलिब्रियम, मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है फोर shear stresses का वो एलिमेंट का इक्वल रहेगा, और जो आपका रेक्टेंगुलर जो एलिमेंट है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा. सो इन समराइज वी हैव अराइव एट द फॉलोइंग जनरल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द shear stress acting on the rectangular element. Like the shear stresses on an opposite and parallel faces of an element are equal in magnitude and opposite in direction, that is shown here over the black arrows. So the shear stresses on an adjacent or perpendicular faces of an element are equal in magnitude and having direction such that both stresses point toward or point away from the line of intersection of the faces. So these observations were obtained from an element subjected only to the shear stresses, no normal stresses, as it is shown over there. इस जो एलिमेंट को यहाँ पे शो किया हुआ है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी shear stress की फोर्स अप्लाई हो रही है, नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं करेगी. इस स्टेज ऑफ जो हमारे पास स्ट्रेस होती है, इसको हम प्योर shear का नाम देते हैं. So for most purposes the preceding conclusions remain valid even when normal stress is acting on the face of element. The reason is that the normal stress on opposite faces of a small element usually are equal in magnitude and opposite in direction, hence they do not alter the equilibrium condition used in reaching the preceding conclusions. So अगर आप यहाँ पे एक डेमो में आपको दूँ तो ये लेट्स से मेरे पास एक बुट है जिसके ऊपर मैं एक ब्लॉड जो ड्रा करता हूँ, और जब मैं इसकी बोथ डायरेक्शन की सूरत में फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये जो मेरे पास एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, जब इसके ऊपर फोर्सेस ऐड करेंगी, मतलब जब मैं बुट को मूव करूँगा इन दीज टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये मेरी रेक्टेंगुलर पैरेलल जो पाइड है वो इस तरीके से ऐड करेगी. सो इसको अब हम कहते हैं shear strain. So shear strain that is acting on an element of material are accompanied by the shear strain. So यहाँ पे इस shear strain को डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम है. जब यहाँ पे फोर्सेस आपकी एक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर जो shear stress की फोर्स एक्ट कर रही है, तो ना उसकी लेटरल साइड पे चेंज अटर हो रहा, मतलब ना उसकी लेंथ में कोई चेंज हो रहा, ना उसकी विड्थ में कोई चेंज अटर हो रहा. उस सूरत में क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, मतलब उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है ओरिजिनल एलिमेंट के साथ. जैसा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाया हुआ है, तो इस सूरत में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी जब डीफॉर्म हो रही तो वो कुछ इस तरीके से शेप अटर कर लेगी. ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रेन हो रही इसको हम shear strain का नाम दे रहे हैं. सो जो एंगल जो बेसिकली हम यहाँ पे gamma 1 और gamma 2 कह रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास डिस्टोर्शन है जो इसकी शेप के अंदर अकर हुई है. ठीक है, तो इसको हम shear strain का नाम देंगे.
तो गैमा जो है वो हमारे पास शीयर स्ट्रेन है और ये डायमेंशनलेस एंटिटी है। सो गैमा इज इक्वल टू गामा 1 प्लस गामा 2, लाइक अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो आपके पास गैमा का एंगल आ जाएगा। सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द शीयर स्ट्रेन बाय सिंपली प्लगिंग द गामा 1 एंड गामा 2 वैल्यू लाइक पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो ये गामा 1 और गामा 2 जो टोटल आपके पास पाई बाय 2 बन रहा है, इसको आप माइनस कर देंगे इस बीटा एंगल के साथ, तो आपके पास शीयर स्ट्रेन का एंगल आ जाएगा। Sign convention. So the shear stress that is acting on the positive phase of an element is positive if it acts in the positive direction of one of the coordinate axes and negative if it acts in the negative direction of an axis. Or a shear stress acting on the negative phase of an element is positive if it is at in the negative direction of an axis and negative if it is at in a positive direction. Or the shear strain in an element is positive when the angle between the two positive or negative phases is reduced, as well as the strain is negative when the angle between two positive or negative phases is increased. तो जब आपका एंगल इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास स्ट्रेन है वो नेगेटिव होगी, और जब हमारा एंगल जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा अगर हमारी शीयर स्ट्रेन जो है कोई दो फेसिस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव फेसिस के ऊपर ऐड करेगी तो हमारा एंगल जो है वो रिड्यूस होगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द हुड्स लॉ इन द शीयर. So the properties of material in the shears can be determined experimentally from direct shear test or from the tension test. So by obtaining the result of these tests, we can plot the shear stress strain diagram that is shown over here. Here is our strain and here is our normal stress. So these diagrams are similar in shape to the tension test diagram, that is sigma, or you can say normal stress versus the epsilon, or you can say strain, for the same material although they differ in magnitude. So from the shear stress strain diagram we can obtain the material properties as such as the proportional limit, modulus of elasticity and yield stress, and the ultimate stress. So these properties in shear are usually about half as large as those in the tension. So for instance, the yield stress for structural steel in shear is 0.5 to 0.6 times the yield stress in tension. So for many material, the initial part of the shear stress strain diagram is straight line through the origin, just as it is in the tension, as it is shown over there. So for this linearly elastic region, the shear stress and shear strain are proportional, and therefore we have the following equation for Hooke's law in shear, that is tau is equal to G times gamma. So here our G is basically the shear modulus of elasticity, or you can say modulus of rigidity. So the shear modulus G has the same unit as the tension modulus E, namely pascals, or multiple thereof in SI units. So the modulus of elasticity in tension and the shear are related by the following equation, that is G is equal to E over 2 times 1 plus V, and our V is basically the Poisson ratio. Okay, now let's discuss the example. So in this example, a punch for making the hole in steel plate is shown here. So assume that the punch having the diameter of 20 millimeter and it is used to punch a hole in 8 millimeter plate as shown in the cross sectional view in this figure. जैसा कि आपको यहाँ पे cross sectional view के through दिखाया जा रहा है. So if the force of P, that is 110 kilonewton, is required to create the hole, what is the average shear stress in the plate and the average compressive stress in the punch? तो हमने एवरेज शीयर स्ट्रेस और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो पहले हम एवरेज शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए एच. तो जो एरिया है हमारे पास वो बेसिकली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द होल टाइम द थिकनेस ऑफ द प्लेट होगा. तो ये मेरे पास पाई टाइम्स 20 मिलीमीटर टाइम्स 8
मिलीमीटर हो जाएगा, और जो मेरे पास लोड है जो फी फोर्स अप्लाई हो रही दैट इज़ 110 किलो न्यूटन, एंड आफ्टर calculating these term you come up with the solution that is equal to 219 megapascal। और ये हमारे पास जो है shear जो मेरे पास एवरेज shear stress है वो यहाँ पे ऐड आ रही है इस फोर्स के साथ। तो कंप्रेसिव shear stress के लिए हम यहाँ पे फोर्स और एरिया जो है वो हम पंच का लेंगे। तो इस सूरत में हम यहाँ पे अब पंच का जो एरिया है वो निकालेंगे दैट इज पाई डी स्टेयर डिवाइडेड बाय 4 और यू कैन से पाई आर स्टेयर। तो आर जो वो डी बाई 2 होता है, तो डी आर का स्टेयर है तो डी बाई 2 का डी स्टेयर डिवाइडेड बाय 2 स्टेयर इज इक्वल टू 4, तो पाई डी स्टेयर ओवर 4 हो जाएगा। और लोड अगेन हमारे पास 110 किलो न्यूटन है, और एरिया की अंदर यहाँ डी जो है हमारे पास 20 मिलीमीटर है। और आफ्टर रिजॉल्विंग यू कम अप विद दिस सॉल्यूशन दैट इज compressive shear stress is equal to 350 megapascal।